मसीह यीशु के जलाली और कुद्दूस नाम में आप सब की सलामती हो। यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। आप सब उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो रूह कुद्दूस को कैसे हासिल किया जाए, और मैं आपको इसके बारे ज़रूर बताऊंगा। ये मेरी गवाही भी होगी कि मैंने रूह कुद्दूस को जो है कि वो कैसे हासिल किया, और मेरी ज़िंदगी में रूह कुद्दूस कैसे आया, और कैसे मैंने रूह कुद्दूस को के यीशु मसीह से हासिल किया। 1992 की ये बात है। 1992 में मैंने बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेकर कि बाइबल मुक़द्दस को खोलना, बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना बड़ा एक जुनून, बड़ा एक जज्बा था और एक शौक़ था। बपतिस्मे के बाद कि दुआया ज़िंदगी जो है कि ये भी बहुत अच्छी थी। दुआ में रहना और दुआ करना कि इसमें भी बहुत ज़्यादा एक जुनून था, जज्बा था। और आज बड़ी कोशिश करता हूँ कि 1992 में जैसे दुआया ज़िंदगी थी, जुनून था, आज भी हो। लेकिन चले कि मैं इसके ऊपर हम बात करते हैं कि मैंने रूह कुद्दूस को कैसे हासिल किया। और बपतिस्मे के बाद ये सिलसिला जो है कि ये चलता रहा कि खुदा के कलाम को सुनना, खुदा के खादमों से कन्वेंशनों में और चर्चों में, दुआया इबादतों में खुदा के कलाम को सुनना, और फिर खुद भी कि घर में बाइबल मुक़द्दस को खोलना और बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना। एक दफ़ा की ये बात है कि मैंने अमाल की किताब को के पढ़ा। अमाल की किताब में से मैंने अमाल 2 बाब मैंने पढ़ा, और अमाल पहले बाब में और उसकी आत्मीयत मैंने पढ़ी। और फिर मैंने 19वां बाब जो है ये भी मैंने पढ़ा, और मेरे दिल में कि ये एक जज्बा पैदा हुआ कि जैसे कि इब्तदाई कलीसिया ने 120 की जमात ने दुआ में उन्होंने रूह कुद्दूस को हासिल किया। और फिर कि रूह कुद्दूस जो है वो क्या है, इसके बारे मुझे नहीं पता था कि रूह कुद्दूस जो है कि वो हासिल करने से कि क़ुव्वत मिलती है। और ये रूह कुद्दूस एक इनाम है, और रूह कुद्दूस एक ताकत है, और इसके बारे मुझे हरगिज़ नहीं पता था। लेकिन कि जब मुझे पता चला, जब मुझे मालूम हुआ, जब मैंने खादमों से, कन्वेंशनों से और चर्चों से जब मैंने रूह कुद्दूस के बारे के मैंने सुना, और उसके बाद जो है कि मैंने बाइबल मुक़द्दस को के रूह कुद्दूस के बारे के मैंने पढ़ना शुरू किया, और मैंने दरियाफ़त करना शुरू किया, मालूम करना शुरू किया कि रूह कुद्दूस जो है कि वो कैसे हासिल किया जाता है।
روح القدس کیسے جو ہے کہ وہ لیا جاتا ہے۔ اور جب میں نے اعمال کی کتاب کو جب میں نے پڑھا، پہلا باب اس کی 8ویں آیت، اور یہاں پر یہ لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کے انتہا تک میرے گواہ ہوں گے۔ جب میں نے یہ ورس میں نے پڑھی جہاں پر یہ لکھا تھا، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ اب روح القدس جو تھا یہ نازل ہونا تھا، اور پھر قوت جو ہے کہ وہ ملنی تھی۔ اب روح القدس جو ہے وہ نہ میں نے مانگا، نہ میں نے اس کے بارے دعا کی۔ اگر میں نے مانگا نہیں ہے، اگر میں نے حاصل نہیں کیا تو مجھے قوت جو ہے کہ وہ کیسے ملتی۔ اب روح القدس کے بغیر جو ہے کہ وہ قوت جو ہے کہ وہ مل نہیں سکتی۔ جب میں نے یہاں پر دیکھا کہ روح القدس جب ملتا ہے، جب روح القدس آتا ہے تو پھر یعنی کہ قوت ملتی ہے۔ اور یہ لفظ جب میں نے پڑھے تو کہ میں نے خداوند سے جو ہے کہ روح القدس کے مانگنے کی درخواست کی، اور مانگنے کی میں نے اپیل کی کہ مجھے جو ہے کہ یہ روح القدس ملے تاکہ میں بھی قوت پاؤں، اور مجھ میں قوت آئے، مجھ میں طاقت آئے۔ اور جب میں نے اعمال کی کتاب کو میں نے پڑھا 19واں باب جب میں نے پڑھا تو وہاں پر پولس نے کہا کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ اب روح القدس جو ہے، پاک روح جو ہے کہ وہ ایمان سے بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ جب تک روح القدس پانے کے لیے ہمارے پاس ایمان نہیں ہے تو ہم روح القدس نہیں پا سکتے، اور ہمارے پاس نہ تو روح القدس آ سکتا ہے، اور نہ ہی ہمیں مل سکتا ہے، اور نہ ہی ہمیں قوت جو ہے کہ وہ مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، روح القدس ایمان سے ملتا ہے، اور جب روح القدس ایمان سے ملتا ہے تو پھر قوت جو ہے کہ وہ بھی ملتی ہے، پھر قوت طاقت ملتی ہے۔ اور میں نے ایمان سے کہ یسوع مسیح سے کہ روح القدس کو مانگنا شروع کیا، ایمان سے مانگنا شروع کیا، اور ایمان جو ہے کہ وہ مجھ میں پیدا ہوا کہ روح القدس ایمان سے ملتا ہے۔ اگر مجھ میں ایمان ہوگا روح القدس پانے کے لیے تو پھر مجھے روح القدس ملے گا، اور یہ تجربہ جو ہے کہ وہ مجھے حاصل ہوگا۔ مجھے روح القدس جو ہے کہ وہ ملا، اور کہاں پر ملا، اور میں نے کیسے روح القدس کو حاصل کیا۔ ہماری ایک دعائیہ عبادت ہوتی تھی کہ 1992 میں دعائیہ عبادت ہوتی تھی، اور یہ چرچ میں دعائیہ عبادت ہوتی تھی۔ دعائیہ عبادت یہ صبح کے وقت دعائیہ عبادت ہوتی تھی کہ ہم چرچ میں جانا اور وہاں پر جمع ہونا اور دعا مانگنا۔ اور ایک ہی میں نے درخواست رکھی خدا یسوع مسیح کے آگے کہ مجھے خداوند روح القدس چاہیے، اور میں نے روح القدس کو حاصل کرنا ہے، مجھے روح القدس دے۔ اور ایک وقت کی بات ہے کہ اتوار کا دن
इतवार का दिन जब हुआ और सुबह के टाइम कि मैं ताजपुरा के चर्च में गया और वहाँ पर मैंने दुआ करना शुरू की, दुआ मांगना शुरू की। चर्च में और कोई भी नहीं था और सिर्फ मैं ही था वहाँ पर। और ये सुबह का वक़्त था, करीबन कोई 5 बजे का ये वक़्त था, सुबह 5 बजे का वक़्त। और मैं चर्च में मज़बे के ऊपर जब मैं खुदा के हज़ूर में झुका और दुआ करना शुरू की, और मैंने यीशु से यही कहा था कि यीशु के मुझे आज ही के रूह कुद्दस दे। ये मेरा ईमान था, ये मेरा ईमान था कि यीशु आज ही मुझे रूह कुद्दस दे और मैंने आज ही रूह कुद्दस को हासिल करना है और मैंने पाना है। और जैसे ही मैंने दुआ करना शुरू की, दुआ मांगना शुरू की, तो करीबन कोई 10 मिनट के बाद कि ऐसा हुआ कि रूह कुद्दस जो है कि वो मुझ पर नाज़र हुआ और बड़े ज़ोर के साथ कि रूह कुद्दस मुझ पर नाज़र हुआ और गैर ज़बान में मैं दुआ करना शुरू की। यानी कि रूह कुद्दस ने मुझे ताकत दी, रूह कुद्दस ने मुझे ताकत दी और मैं गैर ज़बान में दुआ करने लगा। ये 1992 में कि खुदा ने मुझे चर्च में और सुबह 5 बजे के करीब कि यीशु मसीह ने कि मुझे रूह कुद्दस से मामूर किया, रूह कुद्दस से मुझे भरा और मैंने रूह कुद्दस को हासिल किया, ईमान से हासिल किया और कुव्वत को मैंने हासिल किया। दुआ करता रहा और आज भी याद रखें, अगर कोई रूह कुद्दस पाना चाहता है, और बहुत से लोग मैंने देखे हैं और वो बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन वो ये कोशिश नहीं करते कि रूह कुद्दस जो है उसको भी हासिल किया जाए, कि जो इनाम है कि जिसके वसीला से हमें ताकत मिलती है, जिसके वसीला से हमें कुव्वत मिलती है। हम उसके बारे बहुत कई मरतबा लोग कम जानते हैं, जैसे मैं भी पहले नहीं जानता था और जब मैंने जाना तो फिर मैंने जदोजहद करना शुरू की और मैंने फिर रूह कुद्दस को पाने के लिए ईमान जो है कि वो लाया और जदोजहद की है। तो आज भी बहुत से लोग हैं कि बपतिस्मा तो वो लेते हैं, लेकिन कि रूह कुद्दस को वो कोशिश नहीं करते कि रूह कुद्दस को भी हासिल किया जाए और इस नेमत को भी हासिल किया जाए, इस ब्लेसिंग को हासिल किया जाए, वो कोशिश नहीं करती। अगर वो मेरी तरह कि वो खुदा के कलाम को सुनते हैं, ठीक है, तो वो ज़रूर जदोजहद करें, जैसे मैंने जदोजहद की है, जैसे मैं ईमान लाया, यानी कि सुनकर पढ़कर खुदा के कलाम में से, ठीक है। तो आप भी कोशिश करें कि ज़रूर कि जैसे आपको पता चले और आप सुने तो जदोजहद करें, आप कोशिश करें आप रूह कुद्दस को पाने के लिए। जब रूह कुद्दस आप हासिल करेंगे तो फिर आपको कुव्वत भी मिलेगी, आपको ताकत मिलेगी, कुछ करने के लिए आपको ताकत, आपको कुव्वत मिलेगी, क्योंकि रूह कुद्दस के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, रूह कुद्दस के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो रूह कुद्दस को पाने के लिए ईमान का होना ज़रूरी है और दुआ करना ज़रूरी है और जदोजहद कि ये भी ज़रूरी है कि आप कोशिश करते रहें, जदोजहद करते रहें, और जैसे मुझे हासिल हुआ और आपको भी हासिल होगा। तो इसके बगैर कि मैं खुद भी
ادھورا تھا، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں کہ روح القدس کو حاصل کریں، اور آپ روح القدس کے وسیلہ سے آپ گواہی دے سکتے ہیں، اور آپ پرستش جیسے پرستش کرنی چاہیے آپ ویسے ہی پرستش کر سکتے ہیں، اور آپ خدمت کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ روح القدس کو ضرور حاصل کریں، روح القدس کو حاصل کریں، روح القدس کو پائیں، اور یہ ایمان سے ملے گا، یہ آپ کی دعا سے ملے گا، جدوجہد کرنے سے ملے گا، اس کے بغیر کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ میری گواہی تھی، اور کیسے میں نے روح القدس کو حاصل کیا، دعا کے ذریعہ سے اور ایمان سے اور کوشش کرنے سے، جدوجہد کرنے سے، کہ میں نے روح القدس کو حاصل کیا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ کو بھی یہ توفیق دے، آپ کو بھی ہمت دے کہ آپ بھی کہ روح القدس کو حاصل کر سکے۔ چلیں، اپنا خیال رکھیں، یسوع مسیح آپ سب کو برکت دے۔